Hello students, we are doing the 13th chapter, that is photosynthesis in higher plants, and today we will conclude this chapter by doing the last topic, that is photorespiration or C2 cycle, and what are the various factors which affect the process of photosynthesis. Dear students, in my previous lecture, I discussed about dark reaction. Dark reaction is a mode of CO2 fixation. And there we studied that there are two modes of carbon dioxide fixation. One is C3 cycle and another is C4 cycle. In C3 cycle, the first stable product is a 3 carbon compound, that is phosphoglyceric acid, whereas in C4 cycle, the first stable product formed is a 4 carbon compound, that is oxaloacetic acid. And students, there I told you that the C3 plants which are having C3 cycle, they suffer from photorespiration, which is also known as C2 cycle. So photorespiration जो है students process, जिसको हम C2 cycle भी कहते हैं, this is present only in case of C3 plants, whereas photorespiration that is absent in the C4 plants. So students, today we will be discussing in detail on photorespiration or C2 cycle and what are the various factors which are affecting the process of photosynthesis. Now students, in C3 cycle, which is also known as Kelvin pathway, प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर RuBP है, ribulose 1,5 bisphosphate, and this RuBP it combines with carbon dioxide to form two molecules of PGA, that is phosphoglyceric acid. नाउ स्टूडेंट्स, जो एंजाइम है जो इस प्रोसेस को कैटलाइज कर रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज रिबिस्को. एंड आई टोल्ड यू दैट रिबिस्को एंजाइम जो है इट कैन फंक्शन एज कार्बोक्साइलेज ऑल्सो एंड इट कैन फंक्शन एज ऑक्सीजिनेज ऑल्सो. ये स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि ये जो रिबिस्को एंजाइम है ये दो तरीके से काम कर सकती है. इट कैन एक्ट एज कार्बोक्साइलेज ऑल्सो, it can act as oxygenase also. When it is acting as carboxylase, then it is doing C3 cycle, and when it is acting as oxygenase, it is performing the C2 cycle. ठीक है, C3 साइकिल एक मोड है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके क्या बना रही है? ग्लूकोज बना रही है. एंड C3 प्लांट्स जो है स्टूडेंट्स, उनमें फोटो रेस्पिरेशन देखा गया है बिकॉज ये जो एंजाइम है विच कैन एक्ट एज कार्बोक्साइलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज, ये डिपेंड करता है ऑन द एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये एंजाइम कार्बोक्साइलेज एक्ट करती है और ये परफॉर्म करती है C3 साइकिल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है. बट अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये एंजाइम एक्ट करती है एज ऑक्सीजनेज और ये स्टार्ट करती है C2 cycle, which is also known as photorespiration. So students, because of the presence of this enzyme which can act as carboxylase also and oxygenase also, the photorespiration that is seen in the C3 plants, whereas it is absent in case of the C4 plants. So students, in Kelvin pathway, RuBP combine with carbon dioxide to form two molecules of PGA. Active site of the ribisco, it can bind with CO2 also, it can bind with oxygen also, depending upon the environmental concentration of carbon dioxide and oxygen. Now students, in general अगर देखा जाए तो ये जो रिबिस्को एंजाइम है इसकी एफिनिटी, अट्रैक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड विद दी ऑक्सीजन, एंड दिस बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव. बट अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये रिबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने की बजाय इट स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन. उस टाइम ये प्लांट्स क्या करते हैं? ये प्लांट्स ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं एंड दे स्टार्टेड गिविंग ऑफ फिक्स्ड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं हो रही है. इसमें हो क्या रहा है? प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड दे आर गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
ऑलरेडी जो कार्बन फिक्स करके रखी है प्लांट्स ने, दे स्टार्ट लॉसिंग इट, उसे लॉस करना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन जो है दैट इज हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। एंड स्टूडेंट्स, फोटो रेस्पिरेशन दैट इज सीन इन विच प्लांट्स? इट इज सीन इन दी C3 plants, whereas it is absent in case of C4 plants. We will also study further why it is absent in the C4 plants. So because of the presence of the enzyme ribisco, which can act as oxygenase also, or which can act as carboxylase also, the photorespiration that is seen in case of the C3 plants. Now students, in C3 plants, what will happen? The RUBP, if the environmental concentration of oxygen that is more as compared to carbon dioxide, then this RUBP, what it will do? It will combine with, see here, it will combine with oxygen in the presence of the same enzyme ribisco, and what it will form? It will form one molecule of 3-phosphoglycerate and one molecule of 2-phosphoglycolate. स्टूडेंट, C3 साइकिल में क्या हुआ था? C3 साइकिल में RUBP ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरेट के बनाए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये फॉर्म कर रही है एक मॉलिक्यूल PGA का, और एक मॉलिक्यूल ये फॉर्म कर रही है 2-phosphoglycolate का। दिस पाथवे, दिस इज नोन एज व्हाट? फोटो रेस्पिरेशन। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग? हियर द प्लांट्स, दे विल टेक ऑक्सीजन and they will give off carbon dioxide. So in this pathway there is no synthesis of sugars, कोई शुगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं हो रहा, कोई ATP, कोई NADPH जो है वो फॉर्म नहीं होता। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। रैदर ये कर क्या रहा है? ये कार्बन जो ऑलरेडी फिक्स है उसको ये लॉस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग ATP। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखो साइकिल जो है वो पूरी कंप्लीट दिखाई गई। अगर यहाँ पे भी हम फिगर में देखें स्टूडेंट्स, अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कि C3 साइकिल कहाँ पे हो रही है। C3 साइकिल जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द मेसोफिल सेल्स, इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो C3 साइकिल मेसोफिल सेल्स में होती है। अगर मैं पूछूं C4 साइकिल कहाँ पे हो रही थी? C4 साइकिल मेसोफिल सेल्स में होती है, पार्टली होती है बंडल शीथ सेल्स में। अब C2 साइकिल जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ पे हो रही है? C2 साइकिल की साइट है क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो C3 और C4 साइकिल जो थी वो क्लोरोप्लास्ट में, इट वाज टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, वेयर एज C2 साइकिल जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, इन पेरोक्सीसोम एज वेल एज इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 ऑर्गेनालीज इन्वॉल्व हैं इन दी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस और इन दी C2 साइकिल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट्स आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट्स, 3 ऑर्गेनालीज जो इन्वॉल्व हैं C2 साइकिल में और फोटो रेस्पिरेशन में, वन इज क्लोरोप्लास्ट, अनदर इज पेरोक्सीसोम एंड थर्ड इज द माइटोकॉन्ड्रिया। सो देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपरली देखो, यहाँ पे RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर है। RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, इसने बना दिया एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल इसने बना दिया फॉस्फोग्लाइकोलेट का। ठीक है, सो 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 1 मॉलिक्यूल बना फॉस्फोग्लाइकोलेट। नाउ फॉस्फोग्लाइकोलेट चेंज हुआ ग्लाइकोलेट में, ग्लाइकोलेट अब मूव करेगा इनटू पेरोक्सीसोम, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इट विल फॉर्म ग्लाइऑक्साइलेट एंड एज वेल एज यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो रिलीज होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दैट इज़ वेरी पॉइजनस, ये फटाफट जो है वो डिग्रेड हो जाएगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। फिर ग्लाइऑक्साइलेट, इट विल चेंज इनटू ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। नाउ दिस ग्लाइसिन अमाइनो एसिड इट विल मूव इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगी। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन के ज्वाइन करके फॉर्म करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन। अब ये जो ग्लाइसिन है स्टूडेंट्स, ये 2 कार्बन का है। सो 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन के अटैच करके बनाएंगे एक मॉलिक्यूल सीरीन का। सीरीन
3 कार्बन का है, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स एक कार्बन जो है वो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए हम फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज इन दिस द प्लांट्स दे टेक ऑक्सीजन बट दे गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दिस इज व्हाट फोटो respiration. So serine जो है students, again it will enter into the peroxisome, it will back enter into the peroxisome. Here it will change into hydroxypyruvate. Hydroxypyruvate change हो जाएगा students into glycerate. Glycerate will move into chloroplast, and here ATP देखो यूज़ हो रहा है, तो ATP यहाँ पे यूज़ हुआ है, and ग्लिसरेट इट विल चेंज इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इस तरीके से दिस साइकिल इट कीप्स ऑन मूविंग। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जो लाइट रिएक्शन में जो पावर्स बनी, जो एटीपी जो है वो यूज़ हो गई, और ये एटीपी यूज़ हुई टू टेक ऑक्सीजन एंड टू गिव ऑफ already fixed carbon in the form of what? Carbon dioxide. So this is the complete C2 साइकिल, और C2 साइकिल में 3 ऑर्गेनालीज इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर है तो RUBP है, बट ये RUBP C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, 2 मॉलिक्यूल्स PGA के बनाता है, बट C2 साइकिल में RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल PGA का बना रहा है और एक मॉलिक्यूल बना रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट का। टोटल 3 ऑर्गेनालीज जो है वो इन्वॉल्व है इन दी फोटो रेस्पिरेशन और इन दी C2 साइकिल। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट C2 cycle. Now, students, I have told you that photorespiration, this is absent in case of C4 plants. C4 plants में photorespiration does not occur. Why it does not occur, students? देखो, C4 plants में हमें पता है कि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज़ द मिजोफिल सेल्स एंड अदर इज़ द बंडल शीट सेल्स. थोड़ा सा हम अपना पिछला जो है देखो स्टूडेंट्स हम रिकॉल करते हैं. दिस इज़ द मिजोफिल क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज़ द बंडल शीट सेल क्लोरोप्लास्ट. सो पहली जो प्राइमरी फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कौन करवाता है? वहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का? PEP है. PEP. स्टूडेंट्स, हमने C4 साइकिल कर ली है. हमें पता है कि C4 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का कौन है? पेप है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट. ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होके बनाता है ऑक्सैलो एसीटेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम कौन सी थी स्टूडेंट्स? पेपकेस, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्साइलेज. ये पेपकेस एंजाइम है. अब देखो स्टूडेंट्स, जो पेपकेस है उसने सबसे पहले अटैच करना है, दैट इज फेसिंग द एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. C3 साइकिल में जो रुबिस्को एंजाइम थी वो फेस कर रही थी एनवायरमेंटल कंपोजिशन को ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन. तो जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो रुबिस्को जो है वो कार्बोक्साइलेज की तरह काम कर रहा है, वो C3 साइकिल परफॉर्म करता है. और जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो जो है C2 साइकिल परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये जो पेप केस है वो फेस कर रहा है एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन को ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. और यहाँ पे वाई दी प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं अटैच करता? बिकॉज ये जो पेप केस एंजाइम है दिस इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन. पहला रीज़न ये है कि ये जो पेप केस एंजाइम है दिस इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन. देयरफॉर यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स क्या है? एब्सेंट है. और यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? पहला एक्सेप्टर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो पेप है, ठीक है. पेप मैलेट बनाता है, फिर वो मैलेट जो है वो मूव कर रहा है इनटू बंडल शीट सेल्स. यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और यहाँ पे क्या हो रही है? C3 साइकिल होती है. हमें पता है कि C4 प्लांट्स में C3 साइकिल दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. तो ये जो बंडल शीट सेल्स है जहाँ पे ये एंजाइम रुबिस्को प्रेजेंट है जो बहुत ही विच कैन एक्ट एज कार्बोक्साइलेज, विच कैन एक्ट एज ऑक्सीजनेज.
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन बंडल शीट सेल्स में ये जो रिबिस्को एंजाइम है दैट इज ओनली एक्टिंग एज कार्बोक्साइलेज, ये सिर्फ कार्बोक्साइलेज की तरह ही काम कर रही है बिकॉज बंडल शीट सेल्स जो हैं वो सैचुरेटेड है विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक स्टोर हाउस बन गया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जा रही है, प्राइमरी एक्सेप्टर पेप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है। तो ये जो बंडल शीट सेल्स हैं यहाँ पे, ये बंडल शीट सेल्स जो हैं दे आर सैचुरेटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर हियर द रिबिस्को एंजाइम दैट इज एक्टिंग ओनली एज carboxylase, it is not acting as oxygenase, therefore photorespiration it is absent in case of C4 plants, whereas it is seen in case of the C3 plants. So students, in C4 plants photorespiration does not occur because they can increase carbon dioxide concentration at the enzyme site. एंजाइम साइट क्या है स्टूडेंट्स, बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स में जो रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है जो कि एक्ट कर सकती है एज कार्बोक्साइलेज एज ऑक्सीजनेज, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एंड दिस टेक्स प्लेस व्हेन C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल दैट इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीट सेल्स टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए रिबिस्को एंजाइम जो है उसकी जो ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी है वो मिनिमाइज हो जाती है। And due to the lack of photorespiration, productivity or yield जो है that is much higher in case of the C4 plants. In addition students, these plants they show tolerance to high temperatures also. So students ये reason है if somebody ask you that why photorespiration or C2 cycle that is absent in case of C4 plants, तो पहला reason तो तुमने ये लिखना है कि जो pepcase enzyme है that is insensitive to oxygen। दूसरा reason ये है कि जो bundle sheath cells है their bundle sheath cells they are saturated with carbon dioxide, so there is increase in the CO2 concentration at the enzyme site in the bundle sheath cells, therefore here the ribisco enzyme it only act as carboxylase, its oxygenase activity it gets minimized, therefore photorespiration it is absent in the C4 plants. Now students, next topic है factors affecting photosynthesis. What are the various factors which affect the process of photosynthesis? Now students, photosynthesis को बहुत सारे factors, internal factors जो plant के खुद के factors हैं plus environmental factors दोनों ही affect करते हैं photosynthesis को, and we will study all of these factors one by one. Internal factors में students number क्या है leaves का, जितना ज़्यादा number होगा उतना ज़्यादा photosynthesis. Size क्या है, larger the size more will be the photosynthesis. What is the age of the leaves, younger the leaves more will be the photosynthesis. Orientation क्या है leaves का, mesophyll cells का क्या orientation है, chloroplast का क्या orientation है, ये internal factors हैं जो affect करते हैं photosynthesis को. Besides this, internal CO2 concentration and amount of chlorophyll, these are the internal factors which affect the process of photosynthesis. और एक्सटर्नल फैक्टर्स में स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए, जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, वाटर है, दे ऑल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Now students, before discussing each and every factor in detail, let us start this law which is known as Blackman's law of limiting factors. बहुत important law है students. Blackman's law of limiting factor, it was given by Blackman in the year 1905. और ये law क्या state करता है? This law states that if a biochemical process is affected by more than one factor, its rate is determined by the factor nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. ब्लैकमैन ने ये कहा कि जब किसी प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का रेट जो है वो उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा जो सबसे मिनिमम अमाउंट में है.
ओके स्टूडेंट्स, जैसे फोटोसिंथेसिस है, सपोज उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उसे लाइट अफेक्ट करती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अफेक्ट कर रही है, उसे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, तो रेट जो है फोटोसिंथेसिस का वो उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी में है। दिस इज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। या इसको हम दूसरे तरीके से डिफाइन करें दैट व्हेन अ प्रोसेस इज कंडीशनड as to its rapidity by a number of separate factors, the rate of the process is limited by the pace of the slowest factor. तो जब भी किसी प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का रेट उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दिस इज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम इसे ग्राफ की हेल्प से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस जो है उसे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है। देखो अब ये ग्राफ क्या बताता है कि जैसे जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज करनी स्टार्ट की, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट एक पॉइंट पे आके जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट हो गया। मतलब अगर अब हम लाइट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे फर्दर तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो गया है विद दिस पर्टिकुलर फैक्टर, बिकॉज ये फैक्टर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया है। अब जो फोटोसिंथेसिस है वो उसमें कोई दूसरा फैक्टर जो है वो उसे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिमिटिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई है, लाइट भी मैक्सिमम है। तो अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी स्टार्ट करेंगे तो देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया एट हायर CO2 कंसंट्रेशन, और एक पॉइंट पे आगे वो फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इट मींस अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई है। अगर अब हम फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज अब कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया है जो कि मिनिमम कंसंट्रेशन में है। तो अब मिनिमम कंसंट्रेशन में क्या है, टेम्परेचर है। लाइट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक रीच कर गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक रीच कर गया है। अब मिनिमम वैल्यू में क्या है, मिनिमम वैल्यू में अब टेम्परेचर है। तो नाउ टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, बट अगेन एट वन पॉइंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट विल बिकम कांस्टेंट। Okay students, so now some other factors has become limiting. So this is the Blackman's law of limiting factor, जो ये कहता है कि जब किसी प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का रेट उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो पहले लाइट मिनिमम थी, हमने लाइट को इंक्रीज करना शुरू किया, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ना शुरू हो गया। जब लाइट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो अब कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लिमिटिंग हो गई, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना शुरू किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होना शुरू हो गया, बट अब कोई तीसरा फैक्टर जो है वो लिमिटिंग हो गया। नाउ टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर। फिर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, हमने देखा अगेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। Now students, what are the various factors which affect the process of photosynthesis? जिसमें सबसे पहला है लाइट। लाइट में स्टूडेंट्स लाइट की क्वालिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, लाइट की ड्यूरेशन कितनी है, कितने घंटे तक प्लांट को लाइट मिल रही है, ये सारी चीज़ें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं। एक लीनियर रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हायर देखो लाइट की क्वालिटी में हमें पता है कि ब्लू और रेड लाइट जो है वो बहुत अच्छी है, इफेक्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स। और लाइट की इंटेंसिटी में हमें पता है कि टोटल जितनी लाइट फॉल कर रही है उसकी 2% ही यूज हो रही है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ड्यूरेशन में देखा जाए तो 10 से लेके 12 घंटे जो लाइट होती है दैट इज इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी जो है वो भी
फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं, बिकॉज इस टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं दे बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो गया तो नेचुरली देर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. Light saturation occurs at 10% of the full sunlight. Hence, except for plants in the shade or in the dense forest, light is rarely a limiting factor in the nature. ठीक है, तो लाइट का जो सैचुरेशन लेवल है वो 10% है. इसका मतलब जो प्लांट्स शेडी एरियाज में अकर करते हैं या डेंस फॉरेस्ट में अकर करते हैं वहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर एक्ट करता है. नॉर्मल जो सन प्लांट्स हैं जो सनलाइट ब्राइट सनलाइट में ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे लाइट का इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं है ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और हाई लाइट इंटेंसिटी भी स्टूडेंट्स बताया है कि हाई लाइट इंटेंसिटी जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देगी क्लोरोफिल को. इस तरीके से फोटोसिंथेटिक रेट जो है इट विल डिक्रीज. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में 0.03 to 0.04% है. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को अप टू 0.05% इंक्रीज करते हैं देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. बियॉन्ड अगर दिस लेवल इट बिकम्स डैमेजिंग ओवर longer periods. Low light conditions में C3 and C4 plants do not respond to high CO2 concentration. High light intensity में students they show increased rate of photosynthesis. तो low light intensity पे high CO2 concentration का कोई effect नहीं है. High light intensity पे हाँ ज़रूर high CO2 concentration का effect है, ये rate of photosynthesis को increase करता है. Mainly students C3 plants में इसका ज़्यादा अफेक्ट है बिकॉज हमें पता है कि जो C3 प्लांट्स में जो रिबिस्को एंजाइम है जो कि C3 साइकिल भी करवाती है C2 साइकिल भी करवाती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या ऑक्सीजन की ज़्यादा है. तो अगर हम एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा फायदा किसको होगा, C3 प्लांट्स को होगा एज कंपेयर टू दी C4 प्लांट्स. बिकॉज C4 प्लांट्स में जो पेप केस है that is facing the environment and it is insensitive to oxygen as well as to the carbon dioxide. Now students C4 plants जो है it shows saturation at about 360 point, whereas C3 plants इनका saturation level जो है वो ज़्यादा है 450 है मिलीलीटर्स. एंड करंट जो अवेलेबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स की दैट इज लिमिटिंग टू दी C3 प्लांट्स. ड्यू टू दी रिस्पॉन्स ऑफ हायर CO2 कंसंट्रेशन C3 प्लांट्स देखो स्टूडेंट्स दे शो इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस एंड हाई प्रोडक्टिविटी. दिस फैक्ट इज यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स जो होती हैं. हम ग्रीन हाउस बनाते हैं स्टूडेंट्स. ग्रीन हाउस क्यों बनाया जाता है, वो शेड्स क्यों लगाई जाती हैं कांच की, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो. ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी तो ज़्यादा CO2 फिक्सेशन होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इन्हांस होगा. इसीलिए कई क्रॉप्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इन दी ग्रीन हाउसेस. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है मेनली जो डार्क रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, डार्क रिएक्शन जो है वो मेनली कंट्रोल्ड है बाय द एंजाइम्स. और टेम्परेचर जो है उसका एंजाइम्स पे अगर हम हाई टेम्परेचर करते हैं तो एंजाइम्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे. तो टेम्परेचर मेनली जो है वो डार्क रिएक्शन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. C4 plants they respond to high temperatures and they show higher rate of photosynthesis. C3 plants they have a much lower temperature optimum. The temperature optimum of plants they also depends on their habitat. जो tropical plants हैं उनका जो हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो हाई टेम्परेचर पे जो है वर्क करते हैं, और जो टेम्परेट एरियाज़ हैं वहाँ पे जो प्लांट्स अकर करते हैं उनका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है दैट इज़ लोअर. नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स वाटर. वाटर भी अफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को, बिकॉज अगर वाटर स्ट्रेस है तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे. अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड कम एब्जॉर्ब होगा, देयर विल बी लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस.
और वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में प्लांट विल्टिंग शो करता है, ड्रूप डाउन कर जाता है। देखो जो पत्तियां हैं वो ड्रूप डाउन कर जाती हैं, जिसके कारण सरफेस एरिया जो है वो भी कम हो जाएगा और इस तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है प्लांट की बहुत कम हो जाती है। सो वाटर इज ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, जो हमने ये सारे फैक्टर स्टडी किए, लाइक लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को? इसमें मैंने बताया था व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लीव्स, व्हाट इज़ द साइज ऑफ लीव्स, व्हाट इज़ द शेप ऑफ लीव्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओरिएंटेशन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, लीव्स का ओरिएंटेशन क्या है। ये सभी इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि विच आर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कंटेंट कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड ओनली बाय दिस क्लोरोफिल पिगमेंट। देर इज नो फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लोरोफिल जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद स्टूडेंट्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, तो नेचुरली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट विल डिक्लाइन। So with the accumulation of the end products in the mesophyll cells, there is decrease in the photosynthetic rate because the concentration of these products in these cells increase the rate of the respiration. So photosynthetic products की accumulation जो है that also stops or reduces the rate of photosynthesis. So students, this was all about the various factors which are affecting the rate of photosynthesis. So students, with this the chapter is complete, and today we have discussed in detail on photorespiration, which is also known as C2 cycle, and here we also studied that why C2 cycle or photorespiration, it is absent in case of C4 plants. Today we also studied what are the various factors which are affecting the rate of photosynthesis. There are many internal factors as well as there are many external factors which are affecting the process of photosynthesis, and we also studied what is Blackman's law of limiting factors. So students, with this the chapter is complete. I hope the topic is very well clear to you. So thank you to all.